زارا زارا ارم کا فون ہے. ہلو ارم. مام ہاں کیسی ہو بچہ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں. تمہاری آواز اتنی بھاری بھاری کیوں ہو رہی ہے؟ وقت قریب آ رہا ہے نا. مام میری ڈلیوری ہو چکی ہے. کیا تمہارا بیبی ہو گیا؟ اور لیکن تم نے تو کہا تھا ارم کہ 20 دن کے بعد ہے. ہاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 20 دن بعد ہوگی لیکن پہلے ہو گئی. بیٹا کہیں پریمیچور کیس تو نہیں ہوا ہے؟ نہیں مام میچور کیس ہے. وہ گاؤں کی ڈاکٹر نے غلط کہا تھا. سب ٹھیک ہے. اچھا شکر ہے اللہ کا خیر سے ہو گیا. یہ بتاؤ کہ بیبی ہے یا بابا؟ بیبی ہے. بیٹی میری بھی بات کر رہی ہے. ایک منٹ ٹھہرو نا. تمہیں بیٹی کی بہت بہت مبارکباد ہو. لیکن یہ تو گھر کا نمبر ہے بیٹا. تم ہاسپٹل میں نہیں ہو. اور کب ہوا بیبی؟ 2 دن پہلے ہوئی ہے مام. کیا 2 دن پہلے؟ اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں؟ میں ابھی سنبھلی ہوں مام. بیڈ پر تھی. بیٹا پھر بھی اسد یا آپا میں سے کوئی تو ہمیں خبر دے دیتا تمہاری خیریت کی. کوئی تو یہ خوشی شیئر کر لیتا ہم سے. وہ نہیں بتائیں گے مام. وہ خوش نہیں. کیا مطلب ہے ارم؟ تم سے خوش نہیں ہے؟ مام میری بیٹی ہوئی ہے. وہ اس لیے خوش نہیں. ماں پہلے تو پھپھو میری ڈھال بنی ہوئی تھی لیکن اب انہوں نے بھی منہ پھیر لیا ہے. ماں اسد نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اسے گھر لے آیا ہے بچے سمیت. کیا اسد کی دوسری شادی؟ کیا بچہ؟ مام یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسد بھائی نے دوسری شادی کر لی؟ ارم تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. I'm sorry مام. میں نے آپ لوگوں سے پوری بات چھپائی. مجھ سے پپا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسد کو راہ راست پر لائیں گی. اور آپ نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں شہری لڑکی کے بجائے گاؤں کی لڑکی میں ڈھل جاؤں. سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا مام. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا. مام آخر کیا بات ہے؟ ارم کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے بھی تو بتائیے. ایک منٹ ٹھہرو مجھے بات کرنے دو. ارم بیٹا مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ وہاں کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ دیکھو مجھے کھل کر بتاؤ. میں بہت پریشان ہوں. مام اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہوگی؟ کچھ نہیں بچا. میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں. اچھا ٹھیک ہے میرا بچہ لیکن تم پریشان مت ہو. میں صبح ہی علی اور زہرا کو تمہیں لینے کے لیے بھیجتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ماں ان کو مت بھیجیے گا. میں 1-2 دن میں خود آ جاؤں گی. نہیں تم اکیلی کیسے آؤ گی؟ اس طرح اکیلا آنا مناسب نہیں ہے بیٹا. کہا نا مام میں 1-2 دن میں آ جاؤں گی. مام بیبی اٹھ گئی ہے. میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. خدا حافظ. مجھے ارم یہ تو بتاؤ کہ
इरम, मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इतने परेशानियों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। अम्मी देखिए मैं किसको लाया हूँ। अम्मी, मेरे बेटे को प्यार नहीं करेंगे आप? इसे अपनी गोद में नहीं लेंगी? चेहरा भी नहीं देखेंगी इसका? मैं मानता हूं मेहरुनिसा से आपकी बनती नहीं है, लेकिन ये तो आपका पोता है, खून है आपका, इस घर का वारिस है। आपकी गोद में आने के लिए तरस रहा है ये। अगर जमींदारों के घर ऐसे वारिस पैदा होने लगे तो उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। अम्मी अगर प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम इस जुबान में तो बात ना करें। इसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जितना भी अपना मुंह सी लूं, दुनिया वालों का मुंह नहीं बंद कर सकती मैं। ये हमारा खून नहीं है, हम इसे जितने भी अपनी औलाद कह लें, कहलाएगा तो ये गाने वाली की औलाद ना। तुमने हमारी इज्जत पे दाव लगाया और इस बच्चे की माथे पे ऐसा दाग लगाया है कि सारी जिंदगी नहीं धुलेगा। मॉम, हमें चाहिए कि हम खुद जाके इरम को ले आएं। लेकिन बेटा इरम ने तो आने से मना किया है ना। मॉम, इरम बाजी तो मना करेंगी ना, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। उन्होंने तो असद की दूसरी शादी का भी छुपाया था हमसे। मॉम, इरम ये भी तो नहीं बताती कि उसके साथ वहाँ क्या सुलूक किया जा रहा है। शेयर भी तो नहीं करती। लेकिन बेटा मेरा ख्याल है कि हमें पहले तुम्हारे डैड से मशवरा कर लेना चाहिए। देखो कुछ भी है वो उनकी बड़ी बहन है, अगर तुम दोनों इस तरह से अकेले उसे लेने चले गए और कोई ऊंच नीच हो गई खुदा न खास्ता तो तुम्हारे डैड को बहुत बुरा लगेगा। कैसी बातें कर रही हैं मॉम? अगर फुप्पो को डैड की इतनी ही लाज होती ना तो वो इतने महीनों में डैड से एक बार तो जेल में मिलने जरूर आती। यूं फोन मैथ्स की बुक है? मैं देखती हूँ, वैसे मैंने ड्रॉ में रखी थी। मॉम से बात कर लूं? और मॉम, इस तरह फोन करके 2-4 डायलॉग बोल देने से कोई हमदर्द नहीं बन जाता। फुप्पो को इरम की भी कदर नहीं। अगर इरम की कदर होती तो वो इस तरह असद भाई को दूसरी शादी नहीं करने देती। बेहतर यही है कि हम इरम को यहाँ लेकर आए, उससे सारी हकीकत जानें और उसके बाद ही डैड से कुछ शेयर करें। मॉम, सारा बिल्कुल सही कह रही है। हम मजीद वेट नहीं कर सकते। वहाँ इरम बाजी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं। चलो ठीक है, तुम और अली जाने की तैयारी करो, मैं इरम को फोन करके बताती हूँ। पिंकी, 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 पिंकी बेटा, पिंकी उठो।
पिंकी क्या हो गया तुम? पिंकी हाथ से लो। पिंकी हाँ बेटा, ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? जी 7 क्लास में। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ ऐसे? देखें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और हल्का सा टेम्परेचर है, वीकनेस भी है थोड़ी सी। पिंकी जो सिम्टम्स मुझे बता रही हैं उसके हिसाब से ये केस मेरा नहीं है, इसे किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि डॉक्टर शफीक का नंबर आपको लिख के देता हूँ, वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप इसे उन्हें दिखाएं। मैं इन्हें विटामिन की टेबलेट लिख कर दे देता हूँ, लेकिन आप डॉक्टर शफीक को जरूर दिखाइए, नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है? Is everything all right, doctor? हाँ बिल्कुल सब ठीक है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, इंशाल्लाह शी विल बी ऑलराइट। अली बेटा, तुम जरा पिंकी को बाहर लेके जाओ, मैं तुम्हारी सिस्टर को मेडिसिन के बारे में समझा देता हूँ। आओ पिंकी। वेरी गुड बेटा। क्या बात है सर, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, अच्छी न्यूज नहीं है, इसलिए मैं पेशेंट के सामने बताना नहीं चाहता था, बुरा असर पड़ता। क्या बात है? पिंकी को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। ब्रेन ट्यूमर? क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी भी इसका कहीं चेकअप नहीं करवाया? पिंकी नॉर्मल थी सर। उसने कभी इस तरह कुछ बताया नहीं। आज बेहोश हो गई तो मैं उसे चेकअप के लिए ले आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके सर में भी दर्द हुआ होगा, उसको चक्कर भी आया होगी, हो सकता है वो 2-4 मरतबा बेहोश भी हो गई हो। मुझे लगता है आप लोगों ने इसकी बीमारी को अंडरस्टैंड नहीं किया या फिर सीरियस नहीं किया, वरना ब्रेन ट्यूमर इतना बढ़ जाए और पेशेंट नॉर्मल हो, इम्पॉसिबल है। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप लोगों पे बहुत ही मुश्किल घड़ी है, लेकिन यही हकीकत है, इसका फौरन ही इलाज शुरू होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप लोग पेशेंट से इसका जिक्र नहीं करेंगे, वरना वो डिप्रेशन में जाएगी और ट्यूमर और बढ़ जाएगा। अगर आप कहें तो इसे एडमिट करा दें। नहीं, अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हर 15 दिन के बाद इसको यहां लाकर इसका चेकअप कराना बहुत जरूरी है। ओके? अली, तुम पिंकी को लेकर बाहर जाओ, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। चलो पिंकी। क्या हुआ ज़रा आप, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारे सामने तो कहा था कि घबराने वाली कोई बात नहीं। आप लोग चलो, मैं आती हूँ।
अरे आ गई मेरी गुड़िया। दिखा दिया डॉक्टर को? ज़ारा बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं माँ, डॉक्टर कह रहे थे कि टेंशन बहुत लेती है, इसलिए डिप्रेशन का शिकार है। एक तो ये इतनी सी लड़की जो है ना, बहुत तंग किया इसने मुझे। किस बात की टेंशन है भाई तुम्हें? कोई नई दुनिया बनानी है, क्यों सोचती हो तुम इतना? अब क्या करूं मॉम, ये जो मशीन है ना, ये खुद ब खुद चलती रहती है। अच्छा बहुत हो गई बड़ों जैसी बातें, जाओ जाके आराम करो। डॉक्टर ने कहा है इसको कहें टेंशन से बिल्कुल दूर रहें और जितना हो सके आराम करें। चलो तुम चल के लेटो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। ज़ारा, ज़ारा, कुछ हेल्प करा दो आके प्लीज। सॉरी मॉम, वो ध्यान ही नहीं रहा। बेटा जब से तुम और अली आए हो पिंकी के पास बैठे हुए हो, कुछ एहसास करो, मैं सारे घर का काम अकेले नहीं कर सकती हूँ। कम से कम रात के खाने में तो हेल्प करा दिया करो। अच्छा ना, सॉरी। इट्स ओके। मॉम एक बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। एक सीरियस मैटर, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप खुद को संभालेंगी, रिएक्ट नहीं करेंगी। नहीं करूंगी, बताओ। ऐसे नहीं, प्रॉमिस करें कि आप खुद को संभालेंगी। तो मेरे इम्तिहान क्यों ले रही है? वैसे भी अब तक इतने दुख उठा लिए कि हर बात सुनने का हौसला है मुझ में। कहो। हम सबके लिए एक बैड न्यूज है। पिंकी को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। पिंकी को ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता। हम हल्के बोल। पिंकी सुनने की, डॉक्टर्स ने मना किया है उसे बताने की। नहीं मेरे बच्चे, मुझे पिंकी। मॉम प्लीज, मॉम उसको मत बताइएगा। मैं नहीं बता रही। मॉम, पिंकी, मॉम, पिंकी, पिंकी, पिंकी मेरी बच्ची, पिंकी, पिंकी, क्या हुआ मॉम? हाँ नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसे दिल चाहता था तुम्हें प्यार करने का। मॉम आपको क्या हुआ अचानक? नहीं बस ऐसे वैसे ही दिल चाह रहा था। क्यों एक माँ अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकती? हाँ, और अगर उसकी बेटी इतनी प्यारी सी हो। इदरीस कहा करते थे पहले कि मुसीबतें हम पर ही क्यों पड़ती हैं। मैं उन्हें कहती थी कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, वो अपने प्यारों को आजमाता है। लेकिन अब तो मैं भी कहती हूँ कि ये सारी मुसीबतें हम पर ही क्यों आती हैं, हमारे दुश्मनों पर क्यों नहीं आती। मॉम आप सारी रात नहीं सोई, प्लीज थोड़ा सा आराम कर ले। इस दुनिया में तो लगता है आराम नहीं मिलेगा, दूसरी दुनिया में जाके आराम नसीब होगा। मॉम ऐसी बातें नहीं करती, वो मैं पिंकी की मेडिसिन ले आई हूँ, लेकिन सिर्फ 4 दिन की, वैसे खत्म हो गए।
मेरे पास रखे हैं कुछ पैसे, अभी ला कर देती हूँ। नहीं नहीं मॉम, आपकी सैलरी के पैसों से अब गुजारा नहीं होगा। पिंकी के मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है और हर 10 दिन बाद उसके एक्सरे भी कराने पड़ेंगे। ज़ारा, डोंट वरी, मैं जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था कॉल सेंटर का, आज ही अप्लाई करूंगा। नहीं बेटा, जॉब के लिए तो मैं और ज़ारा ही काफी हैं। बस तुम हमारी गैर मौजूदगी में पिंकी के पास रहा करो, उसका ख्याल रखा करो। ज़ारा, मोबाइल ला कर दो मुझे, पैसे हैं हमारी एक जगह, वक्त आ गया वो पैसे लेने का। जी मोमल, आपके घर से फोन आया है। अच्छा तुम रोशनी को संभालो, मैं आती हूँ। मॉम, पिंकी का मत बताइएगा। हेलो। हेलो, हाँ बेटा इरम, कैसी हो तुम? जी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं बस 1-2 दिन में आने का सोच रही थी। अच्छी बात है। वैसे मैं अली और ज़ारा को तुम्हें लेने के लिए भेजने ही वाली थी, मगर वो ज़ारा थोड़ा बिजी है ना आजकल। खैर अब तुम आ रही हो ना, तो आते हुए आपा और असद से वो 20 लाख रुपए ले आना। हाँ मॉम, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। लेकिन हम नहीं भूले बेटा। बड़ा मुश्किल वक्त पड़ा हम पर, लेकिन हमने उन पैसों की वापसी का तकाजा नहीं किया। लेकिन इस वक्त हमें उन पैसों की बहुत जरूरत है। मैं समझ सकती हूँ मॉम। मैं बात करूंगी उनसे पैसों के लिए, लेकिन मॉम वो एकदम से इतने सारे पैसे शायद ना दे पाए। तो कोई बात नहीं बेटा, बस जितने दें उतने ही ले आओ। हमने उनका बहुत लिहाज किया है, कभी पैसे वापस नहीं मांगे। तुमने भी एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जब उनको कोई लिहाज ही नहीं है, तुम्हारी कदर ही नहीं है उनके दिल में, तुम अपने पैसे क्यों छोड़ें? ठीक है मॉम, मैं वो पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। खुदा हाफिज। आ रही है ना? कोई काम था क्या? जी पप्पू, वो 20 लाख। हाँ हाँ, हमने लिए हैं, दे देंगे। इतनी जल्दी क्या है, भागे नहीं जा रहे हम। पप्पू 1-2 दिन में चाहिए, मॉम का फोन आया तो हमें जरूरत है। अगर इतनी जल्दी है ना तो असद से जाके मांगो। लेकिन पप्पू असद से क्यों? आपने मुझे पैसे लेने भेजा था, मैं आपसे मांगूंगी। हाँ हाँ, पैसे मैंने ही लिए थे, लेकिन असद ने जमीनों पे लगा दिए। अब जाके उससे मांगो, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ठीक है, तो फिर आप असद से लेकर दे दीजिएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं उसको मुंह लगाती हूँ जो उससे बात करूंगी। आपने जो डैड से 20 लाख उधार लिए थे, अब उन्हें वापस चाहिए। मॉम की कॉल आई थी। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, अम्मी से जाके लो। लेकिन पप्पू तो कह रही है कि मैं आपसे लूं, क्योंकि आपने जमीनों के लिए लिए थे। अगर पूरे अरेंज नहीं हो सकते तो जितने होते हैं उतने दे दो।
कहा ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं इन पैसों से, और वैसे भी मैं एक पाई नहीं देने वाला किसी को। तुम जानो और अम्मी जाने। ये क्या दोगलापन है सर? जब पैसे चाहिए थे तो फुप्पो ने भी इतनी मिन्नतें की थी, और आप भी तो मेरे साथ डैड के पास पैसे लेने गए थे, और अब आप कहते हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किसका ताल्लुक है? और जब पैसे देने की बारी आई तो फसल और आम के सीजन का बहाना कर दिया। फुप्पो कहती है कि मैं आपसे मांगू, और आप कहते हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर किसका ताल्लुक है? मैं तुम्हारे बाप की मिन्नत नहीं की थी पैसों के लिए। तुम मेरी माँ के कहने पर खुद चल पड़ी थी। अब मुझसे इस लहजे में बात मत करो। आपकी जरूरत थी, अब जब मेरी फैमिली को जरूरत पड़ी है, वो भी अपने पैसों की, तो किसी को कोई गर्ज नहीं? भाड़ में जाइए घर और भाड़ में जाए सब। मैं यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अरे ये आप लोग टीवी मेरे रूम में क्यों ले आए? इसलिए ताकि आप अपने फेवरेट टीवी शोज देख सकें। पर टीवी तो मैं लाउंज में भी देख सकती हूँ, आप लोगों को नहीं देखना क्या? अली जाओ, डीवीडी प्लेयर्स और डीवीडीज लेकर आओ। पिंकी, हम लोगों को कहाँ टाइम मिलता है टीवी देखने का? मैं अपने कामों में और मॉम स्कूल के बाद घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। पर फिर भी जा रहा अभी। अली देखकर फिर भी जा रहा अभी, टीवी लॉन्च में ही हो तो बेहतर है। वैसे भी मुझे शौक नहीं है। पता है, मैंने तुम्हारी फेवरेट कार्टून डीवीडीज मंगवाई हैं, बहुत एंजॉय करोगी। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 1-2 महीने आराम करना, इसलिए तो तुम्हारा डिप्रेशन कंट्रोल होगा। तो ये भी डिप्रेशन कंट्रोल करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और जब टीवी देखने का मूड ना हो ना, तो बाहर लाउंज में आ जाना हमारे पास। पर ज़ारा अभी मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे पढ़ना है, एग्जाम्स करीब है। फिलहाल आपने खूब आराम करना है। जब एग्जाम्स करीब होंगे ना, तो मैं खुद अच्छी सी ट्यूशंस लगवा दूंगी। चलो अली, अच्छी सी कोई मूवी लगाओ, हम सब देखेंगे। लेट जाओ। अरे वाह, ये आज सूरज कहां से निकल गया अम्मा? इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूं कि आज मेरी माँ ने खुद बुलाया मुझे। असद, इरम वापस जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जा, बल्कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। वो तुम्हारी बीवी की हैसियत से नाराज होकर चली गई तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो। वो वहां जाकर अपने माँ बाप के साथ मिलकर तुम्हारे पास जमीनों का केस करेगी। तुम्हारे पांव तले से जब जमीनें निकल जाएंगी, जब बताऊंगी कि फर्क पड़ता है। जब तक इरम तुम्हारे साथ है, तुम इन जमीनों के मालिक हो, क्योंकि इरम इदरीस की कमजोरी है, और इरम भी तुम्हारे पास रहकर खुद कुछ नहीं कर पाएगी। और जब तक इरम हमारी मुट्ठी में है, इदरीस कुछ नहीं करेगा। मैंने खतरे की घंटी बजाकर तुम्हें बता दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मोमल, मोमल, जी, ये बैग बाहर तक छोड़ कर आओ।
मेरे बस में होता ना जी तो मैं आपको घर तक छोड़ कर आती। जानती हूँ, अब चलो देर हो रही है। चलो मोमल। कहाँ जा रही हो तुम? तो आज जाने के वक्त ये पूछने की आपको फुर्सत मिल गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ से आई थी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मना करने की वजह पूछ सकती हूँ? मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, यही वजह काफी है। कमाल है, जो शख्स मुझे बीवी नहीं समझता, अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं समझता, वो मुझे रोकने का क्या हक रखता है? मोहम्मद, जी सर। इस बैग को फौरन इस कमरे में वापस रख दो। नहीं मोहम्मद, रख दो मेरा बैग, मैं खुद कैरी कर लूंगी। मैं जो तुमसे बात कर उस बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? आप किस हैसियत से मुझे रोक रहे हैं? एक मर्द की हैसियत से। इस घर में औरत अगर एक बार कदम रख लेती है तो उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। समझे? औरतें कोई जानवर नहीं होती जिन्हें खरीद कर अस्तबल में बंद कर दिया जाए। वो और औरतें होंगी जिन्हें आप जैसे मर्द बांदी बनाकर रखते हैं। मैं यहाँ बीवी बनने आई थी, बीवी की हैसियत नहीं मिली तो मैं यहाँ बांदी बनकर भी नहीं रह सकती। जी सर। पकड़ो इसे, ले जाओ। तुम मेरी बांदी बन चुकी हो, इस घर की मोहर लग चुकी है तुम पर। अगर तुमने इस हवेली के बाहर कदम निकालने की कोशिश की, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ूंगा। तुमने अब तक मेरी शराफत देखी है, मेरा गजब नहीं। वाह पप्पू, पहले मुझे मारा गया था तो आप मेरी ढाल बन गई थी, और मैं बेवकूफ ये समझ बैठी कि आपके भाई की बेटी आपकी अपनी बेटी जैसी है, और आज मुझ पर हाथ उठाया जा रहा है तो आप खामोश हैं। इसलिए कि मैंने बेटी पैदा की है। मेरी माँ से अगर तुम इस लहजे में बात करोगी तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। ये तुम शहर की लड़कियां बहुत चिक करती हो। ठीक है, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। मोहम्मद, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची दो मुझे। मेरे में
इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन अगर इस घर में किसी ने इसके साथ बिला वजह की हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो फिर उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। मेरी बत्ती दो मुझे। तुम उसे जाने से रोक क्यों रहे हो असद? क्या मतलब मैं क्यों रोक रहा हूं उसे? निकाह में है वो मेरे, बिला वजह जाने दूंगा उसे मैं क्या? अजीब बात है, तुम खुद ही तो कहते थे कि अम्मा ने उसे तुम्हारे सर पे बिठा दिया, तुम उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अब जब वो खुद घर छोड़कर जाना चाहती है, तुम्हारी अम्मा को भी कोई एतराज नहीं है, वो हमारे रास्ते से खुद हटना चाहती है, तो तुम उसे रोक रहे हो। ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी मेरे, इन मामलात में तुम ना पड़ा करो प्लीज। अगर ये मामला उसके बाप के पैसों का है तो जितने बन पड़ते हैं दे दो उसको, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता देते रहना, पर उसे रोको तो मत। मैं उसे सर आंखों पर बिठाने के लिए नहीं रोक रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, तुम फिक्र मत किया करो। मुझे तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं है। गुलामी कबूल नहीं की जाती है, गुलाम बनाया जाता है। तुम गुलाम बनाई जा चुकी हो। क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी है जो तुम घर से बाहर मुंह उठा के निकल रही हो? आप इजाजत देने का हक खो चुके हैं मिस्टर असद। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। इकबाल ने दोस्त बन के मुझे धोखा दिया, मुझे उसकी इतनी तकलीफ नहीं है। आपा ने बहन बन के जो घाव दिया है वो कभी नहीं भरेगा। आप खड़ी क्यों हो? प्लीज तशरीफ रखिए। क्या आपके यहाँ जमींदारों और जागीरदारों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं।